Assalamu alaikum everyone. Welcome to ICT session 3. Walaikum salam, miss. This is our third class of Volta, and today we'll start the book exercises. Before doing the book exercises, let me finish the explanation. And I hope everyone have the books. So please take out your books. Before starting any lecture, I'd like to see your books. Hurry up. Everyone bring your books. I'm waiting for 5 minutes more to join them all, and then we'll start the lecture. Yes, Halima also wants to join us. And now there are 10 participants. 11 participants are here. Okay, let me take the pictures for the attendance. Hussain, Abir, Halima. Okay, Abir, Halima, Huria, Ahmed, Mustafa, Musab, Rabia, Sarina, Shayan, Taha. Okay, Zain didn't join us till yet. Okay. जैन हमेशा हमें क्लास से 5 मिनट्स पहले ज्वाइन करते हैं, तो मैं इस तरह से 5 मिनट्स 10 मिनट्स पहले अलाउ नहीं करूँगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेक्चर व्हेन यू मिस द मोस्ट ऑफ द लेक्चर. Teacher. जी. Teacher. यस 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 प्लीज. Teacher, your voice is so slow. ओके. Is it okay or not? टीचर मुझे ये पूछना था कि आई वांट टू आस्क दैट हमारी जो कंप्यूटर की होती है अगर कॉपी Sorry dear, I can't hear your voice. कंप्यूटर इज इंटरलीव बट द स्कूल हैज गिवन मी ब्लैक लाइन कॉपी. Beta, it is an interleave copy. Interleave journals. Okay, you have interleave journal for computer, and before writing your syllabus, have you note down the syllabus, everyone? Have you all Yes, note down the miss. syllabus? Teacher, but Yes, the copy that I am having is not interleave. No, okay, then don't worry about it. If you don't have interleave copy, then make any of it. टीचर आपके दफा नहीं है हमारी इंटरलीव. I-word 6 में तो हमारे पास होती है interleave copy. But if 7 में अगर नहीं है तो it doesn't matter. You just take your lining वाली copies, okay? And please don't forget to make indexes. You first have to make in the first page of your copy, of the journal. Your first page is the title page. The second page is of your fall term index. The third page is of your spring term index. The fourth page is of your summer term index. And after that, you have to make the title page of fall term. And after that, you have to make write the syllabus of the fall term, and then start the session work. Okay, got it? Have you all got it? Miss, can you repeat? Okay, let me repeat it again. You have to make. Okay, let me bring the journal and then I'll show you. 1 minute. 1 minute. Okay, dear. Those who have got the copies, so you are saying that you don't have any interleave copy in your set, isn't it? You don't have any interleave copy, everyone.
Please unmute your mic and Yes, answer my miss. question. Okay, so if you don't have an interleaf copy, doesn't matter. You have these journals with you. Okay, in this, what you have to do is when you open it, the first page should be the title page, in which you have to write your name, class, section, and then you have to write the name of the subject. Okay. After that, in the next page, over here, you have to make the title page. Sorry, you have to make the fall term index. Index have only 5 portions. Date, सबसे पहले सीरियल नंबर, देन डेट, देन टॉपिक्स, देन टीचर साइन एंड पेरेंट साइन. दैट्स इट. इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इधर. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग इट. सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक, टीचर साइन, पेरेंट साइन. दैट्स इट. आपका फॉल टर्म का इंडेक्स इस पेज पर होगा. इसके नेक्स्ट पेज पर आएगा स्प्रिंग टर्म का इंडेक्स, और इसके नेक्स्ट पेज पर आएगा समर टर्म का इंडेक्स. यहाँ पे समर टर्म का इंडेक्स आ जाएगा. उधर फॉल टर्म का टाइटल पेज बनेगा, और उसके नेक्स्ट पेज पे आप फॉल टर्म का सिलेबस मेंशन करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद फिर हम उसका जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको खुद से बताऊंगी कि आप उसका टाइटल पेज बनाएं, तब आप बनाएंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. मिस आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली. आप प्लीज अपने अपने स्पीकर्स को थोड़ा मिस आपकी आवाज नहीं आ रही. मिस आपकी आवाज ही नहीं आ रही. कैसे नहीं आ रही? मेरी आवाज मैं बहुत लाउड बोल रही हूँ ऑलरेडी. देयर मस्ट बी इंटरनेट इशू बेटा. दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू हियर माय वॉइस. बट दिस इज सेम माय हैंड फ्री एंड माइक्रोफोन में सेम यूज कर रही हूँ. उसी स्ट्रेंथ से यहाँ साउंड भी फुल है मेरे पास. सो आई होप. स्लो है. I don't know why it is slow. There must be an internet issue with your sound. Because so many schools are using internet, online classes, so might be they are having some issues like that. But remember one thing here, I have explained you how to maintain your copy from the starting till the syllabus. Okay, so you have to follow it first, and then please take out your books. I will start the lecture. Musab had messaged me that he don't have the book right now, so it's okay. But I will start the lecture from the book. This is Formulas in Excel 2013. This is chapter number 1. You all know why we use Excel. We use Excel basically to perform some calculations Teacher, by using I'm the not formulas. having book. It's all right. Please take my lectures, and please, it is my kind Yes, I request have. to everyone. Please bring your book and your copies along with you, because we have to start the session very quickly. We don't have so much time to waste over there. Okay, got it? हमें प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, हमें कॉपी वर्क भी करना है. हमारे पास इतना टाइम नहीं होता. वी डोंट हैव so much time to just spend like that. Already we have wasted over 3 sessions because you are not having your book, you are not having your copy till yet. But now is the time to bring your book and bring your copy. So please do it fast, okay? As much as you can. Got it? So please आप लोग कोशिश करें and please book arrange करें. I don't mind if you take second hand book. I don't mind. Okay, but go to school and take your file set of your copies from the gate. You will have the set of your copies, and kindly do that. Okay. Now in Excel, what we are going to have, for example, the Excel, basically we use Excel to do the calculations, to make the spreadsheets, to make our work easier. Rather than counting one by one, we use the formulas. हम एक एक को प्लस के साथ लगा के साइन उसको सॉल्व करें, इससे अच्छा हमारे पास फॉर्मूलाज लग जाते हैं. फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, please take a look that if you have your book, I'm in page number 1. So if you have your book, kindly take a look at what the things we use in the formulas. We use values, we use cell references, we use functions, and we also use operators. What are the values? The values can be numeric and can be string. Numeric means if you have the numbers like 9, 8, 7, 1, 2, 3, whatever the number you are having, it is called the numeric values. Okay, and then we call about the string. For example, let, hi, computer, saw, some, कुछ भी हम लिखते हैं. So it is all the strings. Okay, so we have two values, numeric values and string values. Correct? Now come on to the cell references. What are the references? The name boxes. Whenever we click on any of the cell,
The references means their names come on the name box. Okay, so the name boxes which are having the name and the references of the cells. For example, if I have written numbers from in the raw A, मैंने raw A में one जो हमारा कॉलम सॉरी कॉलम ए, क्योंकि ए बी सी डी वाले कॉलम्स होते हैं. तो इफ आई राइट 10 numbers in column A from the raw 1 till 8, और मुझे इन सबको कैलकुलेट करना है, सम करना है इनका. तो मैं क्या करूंगी, जब भी सम का फॉर्मूला लगाऊंगी, हमेशा फॉर्मूला इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है. डोंट फॉरगेट टू राइट फॉर्मूला विदाउट यूजिंग इज इक्वल टू साइन. So whatever the formula we are going to write on the Excel, it must start from the is equal to sign. After that, when if you want to, if I want to add the values from cell A1 till A8, so how I will write it is equal to sum, then bracket बनाऊंगी और इसमें लिखूंगी A1 colon A8, और इसके बाद जब मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगी, तो जहां पर हमारा प्रेजेंट जो हमारा एक्टिव सेल होगा, वहां पे A1 से लेकर यानी कॉलम ए का रॉ 1 से लेकर कॉलम ए का रॉ 8 तक जितनी वैल्यूज है वो सब सम होकर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे. गॉट इट? मुस्तफा प्लीज अपने कैमरे को अपने पास रखिए बेटा, अदरवाइज आप इसको स्टॉप कर दीजिए. आपकी फैमिली वहां से मीन्स विजिबल हो रही है. इट इज नॉट गुड फॉर अस. इफ यू वांट टू या इट इज बेटर टू क्लोज इट. थैंक यू. Okay, so the cell references means आपको जहाँ से जहाँ तक की calculations करनी होती है, so we have to write that column and that row along with the column sign, and I will show you in the practical session that how we write it. Okay, then come on to the functions. What are the functions we use? We use the sum function, we use the average function, we use the minimum function, we use the maximum function, and we use the count function. The count function is about the serial numbers, right? हम कहाँ से कहाँ तक का लिख रहे हैं उसकी काउंटिंग होती है. मैक्सिमम यानी हम जो उसमें हमने जहाँ भी वैल्यूज लिखी है उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है, इट इज कॉल्ड इट कम ऑन द मिनिमम. एंड देन एवरेज when we comes up to the average section, so it is also visible that we have the average of that number, that columns which we selected, and we write on the cell reference. And then we talk about the sum, so we can also have the sum. Okay, also we can use the operators. Okay, we can also use the operators. What the operators can be used? We use the plus sign, the minus sign, the multiplication sign, the division sign, the exponent sign, and also we can use the less than and greater than sign. Okay, these things which I have explained you in chapter number 1, page number 1. Now move on to page number 2. Come on to the cell and range references. Okay, and over here there are some certain examples which is given to you in this portion, in which you have the explanation of the cells. That if the cell in the column A and row 1, if you want to write the cell reference of column 1, so what I will write is A1. देन अगर हमें पूरी रेंज लेनी है कॉलम बी की रॉ 1 से रॉ 2 तक, जैसे मैंने अभी आपको ए करके बताया, तो यहाँ पर भी मेंशन किया है B1 से B20 तक को अगर हमें कैलकुलेट करना है, उसको सम करना है, तो हम इसमें B1 कॉलन B20 लिख देंगे. तो आपके B1 से B20 तक की जितनी वैल्यू होगी, जो भी ऑपरेटर की साइन आप यूज करेंगे, जो भी फंक्शन आप उस फॉर्मूले में लगाएंगे, वो सब हमें उसका कैलकुलेट करके दे देगा. ओके, देन कम ऑन टू द रेंजेस. Okay, please give me 2 minutes. I'm just coming. There was okay. Wait. Okay, I was explaining you about the cell references, page number 2. This is the heading of cell and range references. Okay, I'm explaining you about it. So when I would like to add the range from row 4 and column B through D. तो हम क्या करेंगे, अब जैसे हमें कॉलम बी से लेकर B4 से लेकर D4 तक की, यानी हमें वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल में आ रही है. पहले हम वर्टिकल बता रहे थे, जो हम A1 से A10 तक कर रहे थे, या हम B1 से B20 तक कर रहे थे, वो हमारी वर्टिकल लाइन थी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल वन, जहाँ हम रॉ में ऐड कर रहे हैं. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इन्होंने एग्जाम्पल दिए, अगर हमें रॉ 4 को ऐड करना है बी और डी की, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे B4 कॉलन लगा के D4. ओके, इफ यू हैव द बुक यू कैन इजीली सी दैट, अदरवाइज आई कैन आल्सो शो यू ओवर हियर. ये देखिए, आई थिंक इट विल नॉट बी विजिबल सो मच. आप देख सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. Okay,
then when if you want to add a cell in raw 8, तो हम क्या करेंगे, पूरी जितनी भी सेल रॉ 8 के अंदर है हम उसको करना चाहेंगे तो हम क्या कर देंगे 8 कॉलन 8, यानी जितनी भी 8 के अंदर हमारी जितनी भी कॉलम्स आ रही हैं. Teacher, I cannot understand. Do you have your book? No? No, miss, I'm not Okay, having a okay, book fine. with I will me. repeat it when you have the book. Don't worry. I will repeat this lecture again when you all have the book. Kindly bring it till Thursday. I will again repeat this lecture on Thursday, and before repeating it to the lecture, मैं आपको आज ही बल्कि अभी मैं इसकी कुछ पेजेस की पिक्चर्स भेज दूंगी ताकि जिनके पास बुक्स नहीं है जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो काइंडली वो उन पेज को जरूर देखिए. ओके, but it is better to beta please purchase your book. Okay, I don't mind if you have the second hand book as well. I'm not going for the copy right now, but before going to दूसरी the टीचर copy, मुझे कुछ समझ नहीं. know when you have the book we can easily understand. अभी आप मेरा लेक्चर समझे, इसके बाद मैं आपको इसकी पिक्चर भेजूंगी तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ. ओके, I'm just talking about the references, the cell references which you will add for the sum, average, minimum, maximum, count and every function. जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए जितनी भी किस्म की हमारी रेफरेंसेस लग रही होती है सेल की तो वो यहाँ उसके बारे में आपको पता चलेगा. Got it? Now, all cell in row 3 through 6, यानी जितनी भी रो हमारी 3 से लेके 6 तक की रोज है उसको ऐड करने के लिए 3 कॉलम 6 लगा देंगे हम. ऑल सेल्स इन कॉलम ई, जितनी भी हमारी सेल्स हैं और जितना भी कुछ लिखा हुआ है कॉलम ई के अंदर, यानी हमारा जो ई वाला कॉलम है उसमें जितने भी नंबर हैं उसको ऐड करने के लिए ई कॉलम ई लगा देंगे. देन ऑल टीचर सेल्स इन इट कॉलम, मीन जो हमारा कंप्यूटर होता है मैं आपको अभी प्रैक्टिकली टीचर, बता जैसे दूंगी. हमारे पास जो कॉलम्स बने हुए होते हैं. Let me share the screen with you. मैं आपको दोबारा समझाती हूँ इस तरीके से. Then you can might be you understand it. Excel के लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा. Now you can see this. Now listen to me. You all know these are the columns. A, B, C, D. These all vertical lines are the column. Okay. These all are the cells. Sorry, rows. ये आपकी 1, 2, 3, 4 में जितनी vertical, horizontal आ रही है ये आपकी rows होती हैं और ये आपके vertical जो आ रहे थे column होते हैं. I'm again repeating it. These are the columns जो कि ABCD में आ रहे होते हैं और जो 1, 2, 3, 4 में आ रहे होते हैं ये हमारे rows होते हैं. Vertical line हमारी जो यहाँ से आ रही होती है ये होती है कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ रही होती है ये होती है रोज. ठीक है. सेल रेफरेंसेस क्या होता है, ये देख रहे हैं आप सेल के नंबर्स दिए हुए. रेफरेंसेस क्या होता है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या है D1 till D11. तो हम जब भी फॉर्मूला का साइन लगाएंगे जो भी हम लिखेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, इज इक्वल टू की साइन लगाई, सम लिखा, ब्रैकेट लगाया और फिर हम यहाँ लिख देंगे जैसे D1 से लेकर कॉलम लगाएंगे और D11 तक फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. जब हम इसे कॉलम लगा के एंटर करेंगे, अभी तो हमने क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखे हो इसीलिए वो आ नहीं रहा, लेकिन जब भी हम कुछ लिखेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ होगा या ना भी किया हमने यहाँ जिसका यहाँ से यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ होगा वो पूरा का पूरा आपका ऐड करके आपको जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ पे उसको आंसर दे देगा. हमारा कर्सर यहाँ था तो उन्होंने 0 आंसर दे दिया क्योंकि हमारे पास ये मेंशन नहीं था. ठीक है. यही चीज मैं आपको भी यहाँ बता रही हूँ. जैसे हमने आपको बता दिया कि ये तो हमारा कॉलम की एडिशन है राइट. अगर हम सम करते हैं B से लेकर D तक की कॉलम, जैसे आपको यहाँ बताया था B2 B3 से लेकर T3 तक की हमें एडिशन करनी है. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वैल्यूज गिवन है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ. यहाँ मैंने दी है 13, इसके बाद यहाँ दी हुई है 44, फिर यहाँ दी हुई है 25, ये 22 दे दिए और यहाँ दे दिए 58. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे रखा है. अब मुझे इन सबको ऐड करना है. क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट लगा के मुझे चाहिए D3 से लेकर कहाँ तक कॉलम लगाया E3 तक राइट. तो मैंने क्या कर दिया E3 और फिर ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करा तो ये हमारे इन चारों का सम यहाँ आ गया. समझ आई. F में आ गया हमारा क्योंकि मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ था.
कर्सर यहाँ रख के इन सबका फॉर्मूला लगाती तो फिर देखिए यहाँ पे रखा है ये फॉर्मूला आ रहा है, तो जहाँ भी आप कर्सर रखेंगे वहाँ पे फॉर्मूला आ गया। ये हमारा दफा करके दिखाएं। क्या, ये देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा हुआ, ठीक है, कर्सर अपना एक्टिव सेल यहाँ करा। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रही हूँ इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, मुझे करना है B3 से E3 तक, क्योंकि ये 3 रॉ के अंदर कॉलम B से लेकर E तक की वैल्यूज गिवन है। मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर B3 कॉलन E3, ब्रैकेट ऑफ करा, एंटर करा, ये आ गया हमारा इन चारों का सम। इन चारों का सम क्या है 137। आगे बात समझ, तो ये हमने ड्रॉ में ऐड किया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे तो मेंशन कर देती हूँ नंबर, फॉर एग्जाम्पल मिस आप वापस से करके दिखाएं एक और दफा प्लीज। आपको अब कॉलम करके दिखा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कॉलम हमें ऐड करनी है। हमने यहाँ रखा हुआ है, इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ये फॉर्मूला बार है आपका नहीं लिखना चाह रहे, यहाँ लिखना चाह रहे, आपकी मर्जी, आपने इज इक्वल टू की साइन लगाई, सम लिखा, ब्रैकेट ऑन किया। आपको क्या ऑन कहाँ से कहाँ तक करना है, हमने करना है बी की रॉ 11 से लेके बी की रॉ 15 तक। हमने लिखा B11 कॉलन B15 तक हमारे पास नंबर है। ओके, अब हमने इसको ब्रैकेट ऑफ करके जैसे ही एंटर किया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी था वो सम यहाँ पर आ गया। आगे बात समझ, ये हमने वर्टिकली करा एडिशन, यहाँ हमने हॉरिजॉन्टली करके दिखाया। सेल रेफरेंसेस का मतलब है हमने वो रेफरेंसेस दिए, यहाँ पर देखिए वो रेफरेंसेस दिए जहाँ से जहाँ तक हमारे रॉल्स हमारी गिवन है, वैल्यूज जहाँ से जहाँ तक गिवन है। मतलब टीचर हमें जहाँ से कोई किस रेंज में, जैसे हमें B से 11 करना है तो हमें उसमें फॉर्मूला में लिखना होगा तो वो पूरा साथ में आ जाएगा। बिल्कुल। अब जैसे मुझे ये जो B में लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने पूरे B की जितनी भी रो है ना सबको कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या करा, इज इक्वल टू का लगाया, सम लगाया, ब्रैकेट लगाया और लिख दिया बी कॉलन B। इसका मतलब जितना भी कुछ B के अंदर है ना वो सब एक साथ कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए जो जितनी कॉलम B के अंदर हमारा आ रहा है ना, ये देखिए 717 आंसर आ गया, क्योंकि हमने B की पूरी वैल्यूज को एक साथ काउंट कर दिया। गॉट इट? मिस आप हॉरिजॉन्टल करके दिखाएंगे एक और दफा? आपको हॉरिजॉन्टल करके दिखाऊं? ओके, ये रहा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर रख दिया हमने वैल्यू अपनी और यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन करके हमने क्या किया, ये क्या है हमारा B3। हमने अगर हम चाहे ना, हमें लिखना समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से कहाँ तक करें, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ जाएगी, डॉटेड लाइन है ब्लिंकर के साथ। आपने इस पे क्लिक करा, कॉलन लगाया और आपको यहाँ तक चाहिए, आपने यहाँ तक को सेलेक्ट करके जूम करके लगा दिया, एंटर किया, आ गया 137 आ गया, बजाय पूरा लिखने के आपके पास इस तरह ऑटो में भी आ गया। बात समझ आई? ओके, ये खुद ही बता देता है आंसर। ये देखो यहाँ पर रखा हमने कर्सर, इज इक्वल टू की साइन लगाई हमने, ठीक है, सम लिखा SUM सम, ब्रैकेट ऑन किया, हमें यहाँ से यहाँ तक को ऐड करना है। हमने इस पे जैसे ही क्लिक किया ना तो यहाँ देखो B3 आ गया, इधर भी B3 आ रहा है। हमने मैं चलाता हूँ शाम को। हमने सिर्फ कॉलम लगाया और इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसमें ले ली और इसको क्लिक किया तो आ गया 137। इसी तरह अगर आपको यहाँ तक करना है, हमने यहाँ पर एक्टिव सेट रखा, इधर क्लिक करने से पहले हमने यहाँ पर रखकर इज इक्वल टू सम लिख दिया, फिर ब्रैकेट ऑन किया और इस पे क्लिक किया एंड देन कॉलम की साइन लगाई और अगेन इस पे क्लिक कर दिया और फिर बंद करा ब्रैकेट, एंटर कर दिया, 352 जो इनसे यहाँ से यहाँ तक का आ गया। मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि अगर हमें आंसर खुद ही बता देता है। खुद बताता है एंटर करके, फॉर्मूला लगाया इसीलिए कि वो आपको ऑटो सॉल्व करके देता है। मैं आपको ऑटो सम भी बताऊंगी पर पहले आप लोग ये समझ जाइए। इसके अलावा मैंने आपको बताया, अब जैसे यहाँ पर आ जाइए, ये तो मैंने आपको B का बताया, ठीक है, यहाँ पर जो हमने ऐड किया था 717, यहाँ क्या किया था, B से B तक की जितनी भी रॉ में कॉलम में वैल्यूज है वो कैलकुलेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रखती हूँ अपना कर्सर और यहाँ लिखती हूँ इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन B कॉलन B। इसको लगा के जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करूंगी तो जितनी भी है आप देख सकते हैं B का कॉलम हाईलाइट होके सेलेक्ट हो गया, यानी कॉलम B में जितने भी नंबर है वो पूरे कैलकुलेट होके सम आ जाए। एंटर किया 717 आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर है उनका कैलकुलेशन 717 आंसर है। इसी तरह अगर मैं D के लिए करती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ कर्सर, इज इक्वल टू लगाती हूँ, सम लिखती हूँ, कॉलन लगाया, ब्रैकेट ऑन करा,
कॉलन डी लगा के ब्रैकेट ऑफ करके एंटर किया, ये देखिए 511 यानी डी में जितनी वैल्यूज हैं वो आपकी यहाँ कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गई। गॉट इट? इधर ही टेबल मिस ये जो सम और ये है ये खुद ही बताएगा। हाँ बेटा, दिस इज अ फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला हेल्प करता है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको टेबल बना के सॉल्व करना सिखाऊंगी, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। टीचर मैं ये ट्राई करूंगी बट अभी मेरा लैपटॉप रिकवर होने गया हुआ है ना। ओके फाइन, आप बाद में कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक अबाउट दिस कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप जैसे मैं यहाँ लिख दूँ बी टू डी, एक और मैं यहाँ पे रख के करती हूँ, ठीक है? अब हमारे से बी से लेकर डी तक की जितनी भी रो में हमारे पास नंबर है वो कैलकुलेट होकर आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने एक्टिव सम रखा, इज इक्वल टू की साइन लगा के सम लगा, ब्रैकेट ऑन करा और लिख दिया मैंने बी कॉलन डी। जब मैं ये लिखूंगी ना तो बी से लेकर डी तक की, ये देखो जब मैंने बी कॉलन डी लिखा है, यहाँ दिख रहा है बी कॉलन डी, तो ये बी से लेकर डी तक की जितनी भी वैल्यूज है ना वो सब कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। एंटर करा, ये देखो आ गया बड़ा सा वैल्यू, क्योंकि बी से लेकर डी तक की जितनी भी वैल्यूज है वो सब एक साथ सेलेक्ट होकर कॉलम बन के आ गई है। आगे बात समझ? अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ इज इक्वल टू सम कॉलन, अब मेरे पास जितनी वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है ना, मैं चाह रही हूँ बी से लेकर जी तक की सारी वैल्यूज कैलकुलेट होकर इधर आ जाए, तो मैं क्या लिखूंगी बी कॉलन जी। जब मैंने एक मिनट, ये देखो आंसर आ गया, लेकिन मैं दोबारा करूंगी इसको, यहाँ पे करके दिखाती हूँ। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन बी कॉलन जी, ब्रैकेट ऑफ, एंटर करा, ये देखो 3038, ये जितनी भी वैल्यूज है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बी से जी तक की जितनी भी वैल्यूज है वो इधर आ गई कैलकुलेटर। गॉट इट? यस मिस। अब मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद एक्सप्लेन करके जब मैं आपको टेबल्स के साथ सिखाऊंगी, आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं, जब भी आप फॉर्मूला लिखें यहाँ पर आपके पास अगर एंटर नहीं दबाना, आपने सिर्फ ये भी दबा दिया ना, तो ये एंटर का काम करता है। दिस इज द टिक साइन व्हिच इज यूज्ड एज अ फॉर्मूला, एंटर प्रेस करने की जगह, ठीक है? आप यूजिंग अच्छा फॉर्मूलाज टीचर, ये बी से जैसे आपने जे तक किया है तो क्या क्योंकि आपने बी रो सेलेक्ट कर ली थी? सेलेक्ट कुछ भी नहीं किया मेरा बच्चा, इधर आ जाओ, ये वाला एक्टिव सेल दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा मैंने इज इक्वल टू, चाहे तो मैं यहाँ लिखूं चाहे तो मैं यहाँ लिखूं, एक ही बात है। इज इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट बनाया, अब देखो हमारे पास बी से लेकर जी तक की सारी वैल्यूज लिखी हुई है ना यहाँ पर, ये चलो आपको मैं के तक करके दिखा देती हूँ, के तक आखिरी वैल्यूज है ना, तो मैंने लिख दिया बी से लेके बी कॉलन के। अब मैंने इसको एंटर करा ना, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बी के अंदर इसको लिखा हुआ है, चलो ये इसलिए नहीं आ रहा। अब इनको यहाँ पे क्लिक करके ये देखो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तो मैंने सेलेक्ट करा है, लेकिन क्योंकि मैं इसी में लिख रही हूँ तो इसलिए उन्होंने मैं एरो बना के दे दिया। मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस करूंगी और यहाँ पर रख दूंगी अपना कर्सर, ठीक है? अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इज इक्वल टू सम ब्रैकेट बी कॉलन, कहाँ तक हमारे पास सारी वैल्यूज है, के तक, के, ब्रैकेट ऑफ करा, एंटर करा, देखिए ये जितनी वैल्यूज यहाँ लिखी है सबका सम यहाँ आ गया सम। ओके, बस टीचर ड्रॉ जरा सी आगे करनी है, उसी रो में नहीं करना जी, इस तरह करना है, ठीक है? आप शेयरिंग कर रही हूँ, वी हैव लॉस्ट द टाइम, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम रह गया था क्लास का। आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चन। ओके फाइन, if you want to ask any question beta, please feel free to ask and then I will finish the lecture, and inshallah again I will again repeat this page number 1 till again I will repeat from page number 1, और मैं आपको दोबारा से ये चैप्टर समझा दूंगी प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी दोनों तरीके से। ओके, ऑटो सम इसके जितने लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है और इसके लिए आपके पास बुक होना ज़रूरी है, ताकि मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करूँ आपकी वैल्यू समझ आए और आप उसको इजीली समझ के कर सकें। गॉट इट? Yes. So if anybody of you wants to ask any question, please feel free to ask. I'm here to serve you. टीचर मुझे पूछना था, प्रैक्टिकल हम लोग अभी तो नहीं सबमिट करा सकते? अभी मैं प्रैक्टिकल पे नहीं आ रही हूँ, I'm just considering your lecture right now. If you know how to insert formulas, how to use
the options of the formulas, what are the operators, what are the values, how you add strings and these type of things into the formula. इसमें थोड़ा सा concatenation के नाम से कुछ चीजें आएंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं पहले लेक्चर में लेके चलूंगी, और इस लेक्चर को कंटिन्यू होने में हमें 2-3 क्लास लग जाएगी, इसलिए प्लीज क्लास मिस नहीं करनी है आप लोगों ने, और अपनी बुक के साथ आपने ये क्लास अटेंड करनी है, ठीक है? तो डोंट फॉरगेट टू bring your book along with you. If you want to note down anything, you can have the notebook with you. आप कोई रफ कॉपी लेके बैठे, जो मेरी चीज समझ ना आ रही हो, मुश्किल लग रही हो, नोट करें, मुझसे बार बार पूछें, मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगी क्लास के अंदर, ठीक है? Okay. I will again repeat Okay, from the teacher, may I starting leave? section. Yeah, everyone can leave now. Thank you so much. See you on the next class. Take care. Allah Hafiz. मरियम, अल्लाह की पहली क्लास है 1:30 बजे, ओके?